Good afternoon, everybody. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. बहुत कम लोग ज्वाइन किए हैं आज. Okay, let's start. एक मिनट में रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया गया आज. कम लोग ज्वाइन किए हैं. So today we will discuss about SR latch. Okay. So in last lecture we discussed about the latch. Latch का मतलब हमने बताया था कि latch is used for basically certain flip flop, right? And it refers to non-clocked flip flop. इसमें clock pulse का कोई importance नहीं होता है, right? So we have different types of latch in which first we discuss about the SR latch. It is also called SC latch or RS latch. Okay. So what does it mean? Basically, S means set and R means reset. Okay. Here also S means set and C means clear. So I have already discussed that reset and clear both are same. Okay. Means if uh, output of the or the state of the flip flop, sorry, output Q of the flip flop is equal to 0, then that particular flip flop is set to be in reset state or clear state, right? And if Q equal to 1, then flip flop is set to be in set state. Similarly, R means reset and S means set. Okay, so we discuss about the SR latch. First of all, block diagram of SR latch. In SR latch, we have only two inputs. One is S and another is R. And we have two output, Q and QR. Q is the normal output and QR is the inverted output, right? Now, we can see the truth table for this SR latch. Inputs S and R, present state, present state. It may be represented by Qn and then next state, and it can be represented by Qn plus 1. Then comments. Okay. So what is this present state and next state? I have already discussed about this. Present state is the state of the flip flop before the application of input. Means अभी हमने flip flop को इनपुट प्रोवाइड नहीं किया, तब उस फ्लिप फ्लॉप का क्या स्टेट हो सकता है? आइदर इट मे बी इन सेट स्टेट और रीसेट स्टेट. तो ये स्टेट हो सकता है आइदर सेट या रीसेट. So before the application of input, whatever be the state of the flip flop, that is called present state, and after the application of input, whatever be the state of the flip flop, that is called
next state. Okay. So since we have two inputs, so different combination of the input will be 0 0, 0 1, 1 0 and 1. So these are the four combination. ओके अब देखिए यहाँ पे कि अगर 0 0 है आपके पास, 0 0 इनपुट है तो प्रेजेंट स्टेट की दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आइदर वो सेट हो, सॉरी रीसेट हो या सेट। सिमिलरली 0 1 इनपुट प्रोवाइड करेंगे, उसके पहले ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि Q का वैल्यू मीन्स ये जो है ना Q का वैल्यू तो या तो 0 होगा या 1 होगा। सिमिलरली इसके साथ भी लिख सकते हैं, इसके साथ भी लिख सकते हैं। ओके तो एसआर लैच में क्या होता है कि अगर दोनों इनपुट 0 0 है तो उस केस में प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट विल बी सेम। मीन्स आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ इनपुट S is equal to 0 and R is equal to 0, आउटपुट विल बी सेम। जो आपका प्रेजेंट स्टेट था वही नेक्स्ट स्टेट रहेगा। ठीक, सो देयर इज नो चेंज इन द स्टेट, नो चेंज इन द स्टेट। लेकिन अगर S का वैल्यू 0 हो और R का वैल्यू 1 है, R का वैल्यू 1 यानी क्या हो जाएगा, ये रीसेट है ना। R का वैल्यू 1 मीन्स रीसेट ट्रू है। ठीक है, तो प्रेजेंट स्टेट कुछ भी हो, इट डजेंट मैटर, Qn plus 1 will be always 0. 0 means reset. राइट, अब S का वैल्यू 1 है, R का वैल्यू 0। तो S का वैल्यू 1 मतलब S इज इक्वल टू 1 है यानी सेट है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, फ्लिप फ्लॉप सेट मोड में चला जाएगा। यानी कि प्रेजेंट स्टेट कुछ भी हो, आपका नेक्स्ट स्टेट 1 ही रहेगा। एंड द लास्ट कॉम्बिनेशन जो 1 और 1 है, उस केस में प्रेजेंट स्टेट कुछ भी हो, नेक्स्ट स्टेट का वैल्यू कुछ भी आ सकता है। दिस इज क्वेश्चन मार्क। एक्चुअली इट इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब क्या हो गया कि ऐसा भी हो सकता है कि ये 0 था, ठीक है, ये 0 था और इसका भी वैल्यू 0 आ जाए, जबकि ये दोनों अपोजिट आना चाहिए। अगर Q का वैल्यू 0 है तो Q बार का वैल्यू 1 आना चाहिए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है स्थिति, या ये 1 ये भी 1 आ जाए, या ये भी हो सकता है ये 0 और ये 1 आए, ये 1 ये 0 आ जाए, सही भी आ सकता है। तो कोई भी स्टेट हो, प्रेजेंट स्टेट कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है। अगर S और R का वैल्यू आपने 1 दिया तो आपका ये नॉट डिफाइंड केस ही रहेगा। आई होप क्लियर टू एवरीबॉडी। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। ओके फाइन। अब इसको हम लोग चाहें, आप लोग नोट कर लीजिए पैरेलली, इसको हम लोग समराइज्ड फॉर्म में ट्रूथ टेबल बना सकते हैं। यस, R Q और कमेंट्स। जीरो जीरो, 0 1, 1 0, 1 1। 0 0 के केस में Q0, 0 1 के केस में 0, 1 0 के केस में 1 और 1 1 के केस में नॉट डिफाइंड। Here we write no change. Here we can write a reset. Here set. Here not defined. ये समराइज्ड फॉर्म में आप ट्रूथ टेबल पे लिख सकते हैं।
हो गया। इसके बाद आप 25% ऑफ द पेज आप इसका छोड़ दीजिएगा स्पेस, मैं कुछ इससे रिलेटेड भेजूंगा, वो लिख लेना इसके बारे में, ठीक है। स्पेस छोड़ देना। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि SR लैच यूजिंग NOR गेट। यूजिंग NOR मीन्स केवल NOR गेट का यूज करके SR लैच, ठीक है। NOR गेट बनाइए। यहाँ लिखेंगे R, यहाँ लिखेंगे S, यहाँ लिखेंगे Q, यहाँ लिखेंगे Q बार। अब इसको आप समझते हैं। हम लोगों को पता है कि ट्रुथ टेबल कैसा होता है, S R Q, 0 0 0 1 1 0 1 1, इसमें नो चेंज, इसमें सेट सॉरी रीसेट, इसमें सेट और इसमें नॉट डिफाइंड। सपोज दैट इनिशियली फ्लिप फ्लॉप इज इन रीसेट। सपोज दैट ऐसा मान लेते हैं कि इनिशियली फ्लिप फ्लॉप रीसेट में था, ठीक है। तो अब जैसे रीसेट में था तो क्यू का वैल्यू क्या था, 0 था, और क्यू बार का वैल्यू क्या था, 1 था, ठीक है। अब ये एज ए फीडबैक इस गेट में आया है। इस गेट का सपोज ये गेट नंबर 1 लिख दो, इसको गेट नंबर 2 लिख दो। नॉर गेट 1 का आउटपुट जो है एज इनपुट नॉर गेट 2 में आया है। तो हम वेरीफाई करना चाह रहे हैं ट्रूथ टेबल से कि ये हमारा लॉजिक सही है या नहीं, ठीक है, जो हमने बनाया है। तो ये 0 हमने इनिशियली लिया, 0 मान के चला हम लोग कि फ्लिप फ्लॉप इनिशियली जो है रीसेट में था, ठीक। तो रीसेट में था यानी कि क्यू का वैल्यू 1 हो जाएगा, क्यू बार का वैल्यू 1 आएगा। अब ये 0 जो है यहाँ पे आया, ठीक, यहाँ पर हमने ले लिया 0 0, और इस कंडीशन को हम वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में S का वैल्यू कितना है, 0, S का वैल्यू 0। एक इनपुट इसमें 0 आया, दूसरा भी इनपुट 0 आया, आउटपुट क्या आ गया, 1। आउटपुट क्या आया, 1। क्यों, क्योंकि नॉर गेट है तो 0 प्लस 0 का नॉट गेट लगा दिया तो 1 आया। नाउ दिस 1 विल एक्ट एज इनपुट टू दिस गेट। एक इनपुट 1 और दूसरा इनपुट क्या है, 0 0। यहाँ आउटपुट क्या आएगा, 0, आउटपुट 0 आ गया। अब आप देख लीजिए शुरुआती में 0 था और 1 था, और अभी भी 0 और 1 आया, यानी नो चेंज आया, वेरीफाई हो गया ये सेट कंडीशन। अब दूसरा कंडीशन की बात करें, S का वैल्यू 0 और R का वैल्यू 1। S का वैल्यू हमने लिया अब 0 और R का वैल्यू कितना लिया, 1, ठीक है। S का 0, R का 1। अब अगेन ये वैल्यू 0 आया, यानी ये 0 और 0 0 0 इनपुट देंगे तो यहाँ क्या आएगा, आउटपुट 1 आएगा, ठीक है। अब ये 1 एज ए इनपुट यहाँ चला गया, और ऊपर में ऑलरेडी 1 था R का वैल्यू, क्योंकि ये वाला कंडीशन हम लोग देख रहे हैं, तो 1 1 का क्या वैल्यू आ जाएगा, 0 आएगा, ठीक है। यानी Q का वैल्यू 0 आ गया, देखिए दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब तीसरी की बात करें, 1 और 0, ये 1 है और ये 0। अगर S का वैल्यू 1 है, ठीक है, और R का वैल्यू 0 है,
ये रीसेट में था फ्लिप फ्लॉप मान के चलो, यहाँ से 0 आया, यानी 0 और 1, 0 1 का क्या आ जाना चाहिए बताइए कोई, 0 1 का क्या हो जाएगा नॉर गेट का आउटपुट? 0। 0। अब ये जो 0 है वो एज ए इनपुट, देखिए एज ए इनपुट यहाँ काम करेगा, यानी ये 0 और ये 0 दोनों का नॉर गेट में देंगे तो आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा। देखिए तीसरा कंडीशन सेटिस्फाई, बस ये तीनों कंडीशन को हम लोग देखेंगे, चेक करेंगे हो गया। चौथा तो अनडिफाइंड है, कुछ भी आ सकता है। सो if you want to design SR latch using NOR gate, then this will be the circuit diagram. Okay. Now next is SR latch using NAND gate. NAND gate उसमें भी हम लोग क्या बोलते हैं कि एक्टिव हाई। क्या होता है एक्टिव हाई, उसको हम लोग आगे देखेंगे, फिलहाल अभी एक्टिव हाई देखेंगे। एक्टिव हाई का मतलब ही है कि जैसा हम लोग ट्रूथ टेबल ये बना रहे हैं ना, वही ट्रूथ टेबल एक्टिव हाई के लिए। और अगर हम एक्टिव लो की बात करते हैं तो इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। कैसा? तो देख लीजिए, एस आर और क्यू 0 0 0 1 1 0 1 1, यानी एक्टिव लो का केस ये आपका एक्टिव हाई है, दिस इज एक्टिव हाई एंड दिस इज एक्टिव लो। एक्टिव लो का मतलब ये होता है कि जो ये 0 है वो हाई की तरह काम करेगा, यानी हाई हाई मीन्स 1 1 1 1 का क्या होता है आउटपुट? नॉट डिफाइंड। फिर ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, 1 0 का आउटपुट 1, ये 0 1 हो जाएगा 0, और ये 1 1 की जगह पर क्या हो जाएगा? 0 0 0 0 मीन्स नो चेंज। तो एक्टिव लो के केस में ऐसा ट्रुथ टेबल हो जाएगा, एक्टिव हाई के केस में ऐसा ट्रुथ टेबल। अपने को अभी बनाना है एस आर लैच यूजिंग नैंड गेट एक्टिव हाई, तो आपको केवल नैंड गेट यूज करना है और उससे आपको डिजाइन करना है एस आर लैच। कैसे बनेगा वो देखिए। This would be our logic diagram for SR latch using NAND gate। जिस तरह से हमने इसको किया ये वाले को वेरीफाई, वैसे इसको भी चाहे तो वेरीफाई कर सकते। अब अगर आप बनाना है एस आर लैच यूजिंग नैंड गेट एक्टिव लो इनपुट, तो कैसा बनेगा? एस आर लैच यूजिंग एक्टिव लो इनपुट, ऊपर वाला इनपुट था ये एक्टिव लो, तो एक्टिव लो में क्या हो जाएगा? कुछ नहीं है, नैंड गेट बनाएंगे
यहाँ भी एक और R, there will be Q, now इनपुट आउटपुट वेव सर एक बार पिछला स्लाइड दिखा सकते हैं प्लीज? जी बिल्कुल इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म ऑफ SR लैच, नोट कर लीजिए। यस सर। ओके, इनपुट आउटपुट वेव फॉर्म ऑफ SR लैच, इसको अच्छे से समझिए। इसमें ये बोल रहा है कि इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट कैसे चेंज होता है, इसको अपने को समझना है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप से बनाएंगे। हाइट बस सेम होना चाहिए, विड्थ कम ज्यादा सब हो सकता है, कोई दिक्कत। दिस इज फॉर S। अब आपको ध्यान ये देना है कि जहां पर S का वैल्यू 1 है वहां पर R का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि S और R 1 होने से हम डिफाइन नहीं कर सकते, है ना। तो उसको हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो कोशिश यही करना है कि जहां S है 1 वहां पे R का वैल्यू 0 रखना है। जैसे यहाँ तक हमने 0 रख दिया, ठीक। फिर यहाँ पे 1 कर दिया, फिर यहाँ 0, एटलीस्ट यहाँ तक तो करना ही पड़ेगा। फिर यहाँ पे 1 0 कर सकते हैं, ये भी 1, यहाँ पे 1, ठीक है। दिस इज फॉर R। ये अपने अपने हिसाब से आप बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही बनाएं, अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान ये देना है कि सपोज दैट लेट इनिशियली फ्लिप फ्लॉप या लैच इज इन, किसी को भी ले सकते हैं, आइदर सेट या रीसेट। सपोज दैट हमने सेट ले लिया, इनिशियली फ्लिप फ्लॉप और लैच इज इन सेट मोड। पहले क्या है, सेट में था। अब सेट में था यानी ये सपोज दैट Q है, यहाँ पे था, पॉइंट सेट का है। अब A का वैल्यू 0 है और R का वैल्यू 0, तो बोलता है क्या कि नो चेंज। कहां तक? यहां तक। ये देखिए, यहां तक नो चेंज हो जाएगा। यहां तक नो चेंज रहेगा, ठीक है। ये नो चेंज यानी सेट था तो सेट रहेगा। इसका वैल्यू 1 आ गया और इसका वैल्यू 0, तो अगेन सेट ही रहेगा। कहां तक? यहां तक, यहाँ। फिर इसका वैल्यू, S का वैल्यू 0 और इसका वैल्यू 1, तो क्या होना चाहिए? रीसेट होना चाहिए,
रीसेट कर दो, कहाँ तक, यहाँ तक रीसेट हो गया। फिर s का वैल्यू 1 और इसका वैल्यू 0, यानी सेट, यहां तक सेट हो गया। जीरो, 0 1 जीरो, 0 1 का मतलब 0 हो गया। अब यहां के बाद s का
नहीं होगा। लेकिन मेन स्विच को अगर ऑन कर देते हैं तब जो भी स्विच जिस फैन या ट्यूबलाइट के करस्पॉन्डिंग वर्क करता है वो ऑन ऑफ करने से वर्क करेगा। एम आई क्लियर? ठीक उसी प्रकार से गेटेड एसआर लैच में क्या होता है, एस और आर इनपुट्स के साथ साथ एक और इनपुट प्रोवाइड किया जाता है और वो इनपुट जो होता है दैट इज एनेबल इनपुट। ओके, तो ये सपोज दैट आपका एस है, ये आपका आर है और एक और इनपुट प्रोवाइड करते हैं जिसको हम एनेबल इनपुट बोलते हैं, EN से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड आउटपुट विल बी Q एंड Q1। Okay, so how it will work? It will work like different truth table, only it doesn't, it will not get changed. Okay, let's see the truth table. En, S and R, these are inputs. Then Qn is the present state, Qn plus 1 is the next state, and comments. So if enable is equal to 0, then whatever be the value of S and R and whatever be the value of present state, the state will not get changed. ठीक है, मतलब ये हुआ enable का वैल्यू अगर 0 है तो कुछ भी इनपुट आप दे रहे हो स्टेट इसका चेंज नहीं होगा, जो था प्रेजेंट स्टेट वही नेक्स्ट स्टेट हो जाएगा, मीन्स नो चेंज इन द स्टेट, नो चेंज। नाउ एनेबल इज इक्वल टू 1, अगर एनेबल 1 है तो उसके लिए 4 केसेस फिर से बनेंगे, क्या क्या, 0 0 0 1 1 0 फिर 1। अगर 0 0 है तो उस केस में भी प्रेजेंट स्टेट दोनों मोड, आइदर रिसेट और सेट। तो 0 0 केस में क्या होता है, रीसेट होता है। तो आप रीसेट होता है कि नो चेंज होता है, रीसेट। रीसेट कैसे होता है बेटा, 0 0 केस में क्या No होता है, change. नो चेंज होता है ना, नो चेंज, इट वुड बी नो चेंज। और 1 के केस में क्या होता है, Reset. रीसेट हो जाएगा सर। बिल्कुल सही, रीसेट हो जाएगा। और 1 0 केस में क्या हो जाएगा, Set. सेट हो जाएगा। 1 1 के केस में क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है, नोट करना है, नोट कर लीजिए। हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट इज gated SR latch using NAND gate only, using NAND gate, NAND गेट केवल यूज करना है। तो कैसे बनेगा इसका डायग्राम, सेम रहेगा डायग्राम जैसे हम ऑलरेडी बना चुके हैं, थोड़ा सा एक इनेबल इनपुट को केवल ऐड।
So this is the logic diagram for SR latch using NAND gate only. Here you will write Q and QR. Q. Okay. Now, input-output waveform for gated SR latch. What would be the input-output waveform for gated SR latch? तो इसमें क्या होना चाहिए, एक इनेबल इनपुट है उस पर डिपेंड करेगा। मीन्स अपने को देखना पड़ेगा कि इनेबल इनपुट कहाँ कहाँ पे हाई हो जा रहा है, ठीक है। उसके अनुसार जो है अपने को एस और आर का वैल्यू चाहिए। लेट्स सी, देखिए यहाँ पे हम लोग इनेबल इनपुट को लेते हैं। इतना ही लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते हैं। ये आपका इनेबल इनपुट है। उसके बाद एस को लेंगे। ध्यान ये रखना है एस और आर का वैल्यू 1 1 नहीं होना चाहिए, है ना। ये आपका एस है। फिर आर, आर का वैल्यू इसको 1 कर दो। अब क्यू को बनाना है आपको। क्यू ऐसा सपोज करते हैं, लेट फ्लिप फ्लॉप इज इन रीसेट। रीसेट मान लेते हैं। रीसेट मीन्स ये रीसेट है मान लीजिए। अब यहाँ पर इनेबल लो है, तो इनेबल लो है यहाँ से यहाँ तक। तो ऐसा है कि मैंने बोला था कि इनेबल जब लो रहेगा तो उस केस में आपको क्या करना है कि स्टेट चेंज नहीं करना है। तो स्टेट चेंज रीसेट का रीसेट ही रह गया। अब यहाँ देखें हम कि इनेबल हाई हो गया, कहाँ तक, यहाँ तक। तो इनेबल हाई के केस में 1 और 0 आया है, ठीक है। तो 1 और 0 है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये 1 हो जाएगा। ठीक है, कहाँ तक, यहाँ तक। अब यहाँ के बाद क्या हो रहा है, यहाँ के बाद क्या हो रहा है, एनेबल का वैल्यू 0 है, कहाँ तक, यहाँ तक। एनेबल 0 का मतलब क्या हो जाएगा, नो चेंज इन द स्टेट, नो चेंज इन द स्टेट कर दिया। अब एनेबल हाई हुआ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक में क्या स्टेट बता रहा है, स्टेट ये बता रहा है कि ये 1 है, सॉरी ये 0 है और ये 1 है, यानी कि ये 0 में चला जाएगा, रीसेट में चला जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक नो चेंज इन द स्टेट, क्योंकि इनेबल लो है, तो इसको जैसे 0 था 0 ही रहना। फिर इनेबल हाई हो तो उस केस में एस का वैल्यू 1, आर का वैल्यू 0। एस का वैल्यू 1 है तो यानी क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। क्यू बार के लिए क्या करेंगे, 1 0 1 0, दिस इज आवर क्यू बार। हो गया, यह आपका बन गया गेटेड एसआर लैच।
बताइए किसको दिक्कत है, नोट कर लीजिए इसको अच्छे से, नोट कर लीजिए आराम से। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। हो गया? यस सर। चलो, तो नेक्स्ट जो है हम लोग गेटेड डी लैच के बारे में पढ़ते हैं। क्या होता है गेटेड डी? और करके उसके बाद फिर स्टॉप करें। So we will discuss about next delatch, that is gated delatch. D का मतलब होता है डेटा, ओके, मीन्स जैसा हमने इनपुट दिया वही आउटपुट आएगा। यही कैरेक्टरिस्टिक्स होता है गेटेड डीलैच का, ओके। तो इसका ब्लॉक डायग्राम कैसा रहता है? सिंगल इनपुट लैच होता है ये, ठीक है, एंड आउटपुट विल बी टू Q एंड Q बार, नॉर्मल आउटपुट एंड इन्वर्टेड आउटपुट। एक ही इनपुट होता है वो D होता है, और एक और इनपुट हम लोग एनेबल इनपुट बोल सकते हैं, ओके। इस डी लैच को हम लोग बना सकते हैं एसआर लैच से भी। कैसे? एसआर लैच के जो दो इनपुट्स होते हैं, एसआर लैच देखिए ऐसा होता है, एस और आर, ये दोनों के बीच में अगर आप एक इन्वर्टर लगा दोगे, यानी कि नॉट गेट लगा दोगे, देन इट विल बिहेव लाइक डी लैच। यू कैन पुट हियर enable input, enable input, ओके। तो हमने क्या बोला कि गेटेड डी लैच जो होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि आपने जो इनपुट दिया वही आउटपुट आएगा। प्रेजेंट स्टेट पर कुछ मैटर नहीं करता वो क्या है प्रेजेंट स्टेट, ओके। सो लेट्स सी द ट्रुथ टेबल ऑफ दिस डी लैच। यहाँ पे सॉरी, क्यू एंड क्यू वर्ड, तो देखिए इनपुट्स इनेबल हो जाएगा और डी इनपुट्स जाएंगे, और आउटपुट क्या हो जाएगा? क्यू एन एंड क्यू एन प्लस वन, एंड यू में ऑल्सो पुट कमेंट्स, ओके। अब देखिए अगर इनेबल 0 है तो व्हाट एवर बी द इनपुट्स, कुछ भी इनपुट हो, प्रेजेंट स्टेट कुछ भी हो, वो चेंज नहीं होगा, नेक्स्ट स्टेट वही रहेगा। सो देयर विल बी नो चेंज। आई होप इट इज क्लियर। देन अब अगर इनेबल इनपुट 1 है तो दो केस एराइज हो सकते हैं, आइदर d इज इक्वल टू 0 और d इज इक्वल टू 1। अगर इक्वल टू 0 है d का वैल्यू तो प्रेजेंट स्टेट 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो कुछ भी हो
state, it doesn't matter if D is equal to 0, output will be always 0, means reset. Okay. Similarly, whatever be the present state of the flip-flop, if D is equal to 1, then the output will be Qn plus 1, means set. So whatever we provide inputs, that will be our output in case of D latch. Now इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म कैसा बनेगा, एक देख सकते हैं. दिस इज आवर एनेबल इनपुट. अब डी का कैसा भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. इनपुट्स आप किसी भी तरीके से दे सकते हैं. ऐसा ये डी दे दिया मैंने. अब क्यू को बनाना है. हमने कंसिडर किया इनिशियली लैच इज इन, सपोज दैट रिसेट ही मान लिया मैंने. रिसेट है, सपोज ये रिसेट है. एनेबल 0 है तो इतना का रिसेट रहने दीजिए. उसके बाद एनेबल 1 हुआ, डी का वैल्यू 0 है तो अगेन 0 ही रहेगा. कहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक. फिर एनेबल 0 है, ये 0 ही रहेगा. कहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक. फिर एनेबल हाई हुआ तो यहाँ भी 1 हुआ है. 1 हुआ तो यहाँ से 1 कर दीजिए. कहाँ तक, यहाँ तक. ठीक है. उसके बाद 0 हुआ है तो इसको तुरंत यहाँ से 0 कर, यहाँ तक. यहाँ एनेबल 0 है यानी कि नो चेंज. कहाँ तक, यहाँ तक. फिर एनेबल 1 है, एनेबल 1 हुआ यानी यहाँ तक क्या 0 हो जाएगा क्योंकि डी का वैल्यू 0. फिर यहाँ के बाद एनेबल 1 है ही, ठीक है, क्योंकि डी का वैल्यू 1 हो गया है, इसको 1 कर दें. फिर एनेबल 0 है यानी नो चेंज, नहीं आगे बढ़. So this is about the gated latch. अब इसी गेटेड डी लैच को अगर आप चाहेंगे कि इसका नैंड गेट से हम इसको अप्लाई करें, नैंड गेट से इसको इम्प्लीमेंट करें, ठीक है, तो कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे. सब लोग नोट कर लिए क्या? हैव यू ऑल नोटेड ऑन? Yes, sir. Yes, sir. ओके. तो बाय यूजिंग नैंड गेट कैसे बनाएंगे? सिंपल है, मैंने पहले भी बता दिया है. एसआर लैच का जैसा बनाते हैं वैसे ही इसका भी डायग्राम बनाइए. बस केवल एस और आर के बीच में एक इन्वर्टर लगा देना. दिस इज क्यू एंड दिस इज क्यू आर. आपको याद होगा शायद ये हमने एस और आर, एस आर लैच का बनाया था. यहाँ पर एस लिखते थे, यहाँ पर आर लिखते थे. ऐसा था हमारा गेटेड एस आर लैच. अब दोनों के बीच में एक इन्वर्टर लगाना है, ठीक है. तो इन्वर्टर या तो लगाएं या फिर नैंड गेट को ही लगा दें सॉर्टेड करके, ठीक है. तो सॉर्टेड करके हमने नैंड गेट को लगा दिया. दिस इज आवर gated D latch using NAND gate only.
आई होप समझ में आ रहा होगा सबको, कोई दिक्कत नहीं होगी। सबको क्लियर है? यस सर। सब लोग नोट कर लिए? यस सर। सब लोग नोट सच में करते हो कि नहीं करते हो जी? बोल देते हो कि यस सर कर लिए हैं? करते हैं सर। चलो ठीक है, तो फिर आज इतना ही। अटेंडेंस ले लेता हूँ आप लोग का। उसके बाद है अदिति झा, प्रेजेंट सर। आदित्य राज अवस्थी, अल्पना टिर्की, प्रेजेंट सर। अनिकेत चंद्रवंशी, अर्चित, आयुष कुमार मिंज, देवेंद्र सिंह, हर्ष खापरे, प्रेजेंट सर। हर्ष नेताम, इकाई है। यस सर। ठीक है, जो जो और जिसका छूटा हुआ रहेगा वो बाद में बताएंगे, है ना, बीच में मत बताइए। उमेश कुमार नहीं आया है। जॉनसन कुमार, प्रेजेंट सर। कबीर अहमद, प्रेजेंट सर। चितेश्वर सिंह तो है नहीं, और किरण भी नहीं है। क्या नाम? क्रिश चोपड़ा,